Yes, good morning everyone. How are you? Hope all of you are fine. Yes, today we are going to start the next topic, how state government works. Okay? How state government works. So you have discussed about the various levels of government in previous class. Can anyone tell me about the various levels of government? What are the various levels of government? Yes, beta. Please raise your hand. Yes. Yes, Bani. हाँ जी बेटा. The first level of government is panchayat or the village sabha, which looks after the village or the small city. Next comes the state government, which controls the whole state, and state government comes under central government, which controls the whole country and consists of the prime minister, president and vice president. Very good. And other Level बन गए. ministers. How many levels? कितने level बन गए? 3. Yes, very good. So there are 3 levels of government in India: central, state, and local level. ठीक है? At local level, you have discussed about panchayats, municipal corporation. ठीक है? In previous class. So today we are going to discuss about state government. How the state government works. ठीक है? Second level, state government. Such as our Punjab is one state. So there is Punjab government. So total there are 28 states in India. So all the state governments, they are having their different government. Okay. So at state level, which is the government body. Okay. So as local level, there are panchayats, municipal corporation. So at state level, there is legislative assembly. Okay. State में क्या होता है? Legislative assembly. So it is the organ of the government at state level, and in legislative assembly it includes all our representatives. जैसे हमारे representatives होते हैं different level में, तो legislative में भी हमारे ही representative जिनको ही हम elections के through elect करते हैं, they are the members of this legislative assembly. So for electing, जैसे कि हमने local level पे अगर पंच या सरपंच को elect करना था, तो उसके लिए डिफरेंट वार्ड बना दिए जाते थे. हर वार्ड में से एक काउंसलर, या अगर रूरल एरिया है वहां से एक वार्ड में से एक पंच को सिलेक्ट किया जाता था. ठीक है? तो इसी तरह स्टेट में भी क्या किया जाता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है. तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी? कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन एन एरिया फ्रॉम वेयर वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड. ठीक है? वन एरिया from where one MLA will be elected. So one constituency means one MLA. State को हमने किस में divide कर दिया? Constituencies में. So from one constituency there will be one MLA elected. एक constituency में एक MLA elect होगा. And all MLAs, they will become the member of this legislative assembly. जितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उतने एमएलए होंगे और उतने एमएलए बन जाएंगे मेंबर इस लेजिस्लेटिव असेंबली. क्लियर? सो जैसे कि देयर इज लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया दैट उत्तर प्रदेश. सो इसमें से एमएलए कितने इलेक्ट होते हैं? 403. तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं? 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, जिसमें कि 403 एमएलए इलेक्ट होते हैं. अब गोवा की बात करें तो वहां सिर्फ 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, सिर्फ 40 एमएलए इलेक्ट होते हैं. पंजाब की, अगर हम अपने पंजाब की बात करें तो पंजाब में से कितने होते हैं? 117. ठीक है? 117 एमएलए आर इलेक्टेड फ्रॉम पंजाब एंड 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी आर फॉर्म. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है. सो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का, तो आपने सिर्फ हिमाचल प्रदेश का ही करना है. दिस इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज. ठीक है? तो हिमाचल प्रदेश में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. अब इस 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि इलेक्शंस लड़ती हैं. ठीक है? अब जब इलेक्शंस होते हैं, देयर आर वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है. वो अलग अलग इलेक्शंस के लिए अलग अलग उनके लीडर्स खड़े होते हैं, फिर हम उनको वोट डालते हैं.
और जिस पार्टी के लीडर को ज्यादा वोट्स मिलती हैं वो जीत जाता है, ठीक है। सो 1 MLA इज इलेक्टेड फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसका मतलब अगर पूरे स्टेट में जैसे कि हमने सपोज किया 3 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, 3 पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा और उन 3 पार्टीज में से एक पार्टी को मोर देन हाफ जो था वो क्या मिल गया, मोर देन हाफ नंबर वो जीत गया। जैसे कि आपकी बुक में जो हिमाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया गया 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हाफ कितना बना 34। इसका मतलब जिसको मोर देन हाफ अगर उसकी एमएलएज इलेक्ट हो जाते हैं तो वो पार्टी क्या बन जाएगी, रूलिंग पार्टी, ठीक है। जैसे ए पार्टी आपकी बुक में है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो 2003 के इलेक्शन में उसको 43 सीट्स मिल गई, तो इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या बन गई वहां पे उस टाइम पर, रूलिंग पार्टी बन गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको मोर देन हाफ जो थी सीट्स वो मिली थी। that party has secured more than half seats constituencies. He has got his MLAs elected from more than half constituencies. So this party now become the ruling party, and these 2 parties they have become now the opposition parties. वो बाकी दोनों पार्टीज क्या बन गई हैं अब, opposition parties. Clear? इतना क्लियर हो गया कि state is divided into different constituencies. From one constituency, 1 MLA is elected. What is constituency? Area from where 1 R representative or MLA is elected. Then various parties who are contesting elections, whichever party got more than half seats, that party becomes the ruling party. And other 2 parties, other 2, 3 जितनी भी parties हैं, all parties they are becoming the opposition party. वो क्या बन गए, opposition. और इस लेजिस्लेटिव के मेंबर्स कौन है, सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी है, ऑल आर द मेंबर्स ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल एमएलए, जितने भी एमएलए सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से सिलेक्ट हुए हैं, सभी एमएलए इस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टीज। क्लियर, ठीक है। अब ये सारे मेंबर्स किसके, अब इसमें से जो रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, जिसको कि मोर देन हाफ सीट्स मिली हैं, सो फ्रॉम दैट रूलिंग पार्टी दीज पर्संस दे विल सिलेक्ट 1 लीडर एज चीफ मिनिस्टर। उसमें से ये जो रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं 43 एमएलए जैसे हिमाचल प्रदेश में बने, तो इस 43 में से उन्होंने अपने आप में से एक लीडर को क्या किया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, और कुछ मिनिस्टर को अलग मिनिस्टर, जो वो मिनिस्टर थे वेरियस डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर हो गए। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इतनी ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा, कि इसी में से रूलिंग पार्टी में से उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर बना लिया और बाकी मिनिस्टर्स बना लिए जो डिफरेंट, जैसे किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो डिफरेंट मिनिस्टर्स बना दिए गए। अब आपकी बुक में एक और एग्जाम्पल दिया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली के डिबेट का, ठीक है। अब ये रूलिंग पार्टी क्या करेगी, रूलिंग पार्टी डिसीजन लेगी स्टेट के लिए, स्टेट के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो ये रूलिंग पार्टी लेगी, ठीक है। यस बच्चे, यस भव्या। यस मैम, मैंने पूछना था कि जिस पार्टी के मैम 34 से ज्यादा वोट होंगे कि 43 से ज्यादा वोट होंगे वो रूलिंग पार्टी होगी। दिस इज वन एग्जाम्पल, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे अगर 40 सीट्स हैं तो 40 में से जिसको मोर देन 20 मिलेंगे दैट पार्टी विल बी रूलिंग पार्टी, है ना। मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, जिसको मोर देन हाफ, अब 68 का हाफ क्या था 34, तो बुक में जो एग्जांपल है उसके अकॉर्डिंगली इंडियन नेशनल कांग्रेस को 43 मिले थे, ठीक है, तो इसलिए वो बन गई, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले थे तो इसलिए ये रूलिंग पार्टी बन गई एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अदरवाइज जिसको मोर देन हाफ मिलते हैं दैट पार्टी बिकम्स द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो दिस इज जस्ट एग्जांपल, क्लियर, ओके। यस नित्या। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, There is so much noise, beta.
Excuse me, ma'am. Ma'am, Nitya, you can write in chat box. There is so much noise. ठीक है? Because there is so much noise where you are sitting, so you can write in chat box your doubt. Okay, so all this is ki how MLAs are elected. ठीक है? MLAs in various constituencies are formed. A state is divided into various constituencies. From one constituency, one MLA is elected, and that all MLAs are members of Legislative Assembly. The party who is getting more than half seats, that party forms the ruling party, and from that ruling party, one member is elected. One member is elected as the leader, their chief minister, and other ministers. They are also elected. So this is how these MLAs, they choose chief minister and ministers. The ruling party members, they choose chief minister and ministers. Okay. Now these ministers, they are the in charge of various departments. Clear? So till this everything is clear. So we are moving to the next. So there is one example given in your book of different MLAs. They are discussing among themselves. One MLA is saying that there is problem of diarrhea in our area. Okay, the condition of poor is miserable. Then second MLA is saying there is hospitals, they are not in good condition in our area. Then third MLA, he is saying that the water supply, it is not proper in our area. So different MLAs, they are telling their problems. Okay, and then fourth MLA, he is explaining, वो explain करता है कि no, this is not the situation. हमने ये किया है, हमने हमारी गवर्नमेंट ने ये किया है, we have taken this decision, we have taken this facility. ठीक है, तो अलग अलग MLAs अपनी अपनी बात क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रही है, डिस्कशंस हो रही हैं. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिफरेंट MLAs हैं, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी के, वो आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं. तो कैन यू टेल मी द लीडर्स MLAs हु आर टेलिंग द प्रॉब्लम्स, वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होंगे? द MLAs हु आर टेलिंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स बता रहे कि हमारे एरिया में तो ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो रही, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो रही, तो वो MLA रूलिंग पार्टी के होंगे कि अपोजिशन पार्टी के होंगे? और जो MLA कह रहा है कि नहीं, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा नहीं है, हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है, तो वो किस पार्टी का मेंबर होगा? यस सुहाना, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर वो होंगे जो प्रॉब्लम बता रहे हैं. यस ऋषिता, हाँ जी ऋषिता. ओके, सो दिस थिंग इज क्लियर कि जो MLAs प्रॉब्लम बता रहे हैं वो ऑपोजिशन के मेंबर्स होंगे, और जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि नो दिस इज नॉट द सिचुएशन, हमने ये सारे एफर्ट्स किए हैं, स्टेप्स लिए हैं, वो किस पार्टी के मेंबर हो गए? रूलिंग पार्टी के मेंबर्स. ठीक है, और रूलिंग ऑपोजिशन दोनों ही किसके मेंबर्स हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के. ठीक है, तो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में ये एक डिस्कशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है, क्लियर? इसके बाद सो दीज डिफरेंट जो ऑफिशियल्स हैं, डिफरेंट जो MLAs हैं, अब इसी MLAs में से कुछ हमने क्या बना लिए? मिनिस्टर्स. ठीक है, कुछ हमने बना लिए, एक हमने चीफ मिनिस्टर बना लिया और बाकी बना लिए हमने मिनिस्टर्स. ठीक है, आई होप कि यू हैव नोटेड डाउन, ये टेबल बना लेना, इससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो ये तो याद आपने सिर्फ यही करना है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पंजाब में से कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है. ठीक है, सो अब ये हमारे पास चीफ मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर्स भी हैं. अब ये चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर किसके मेंबर्स हैं? रूलिंग पार्टी के. ठीक है, और MLAs, सारे जो MLAs हैं वो किसके मेंबर हैं? लेजिस्लेटिव, उसमें ऑपोजिशन भी है और रूलिंग भी है. अब ये जो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, दे
हैव टू आंसर, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे डिस्कशंस हो रही हैं, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशंस हो रही हैं, वेरियस एमएलएस दे आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के बारे में सारी प्रॉब्लम्स वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर है रूलिंग पार्टी, ये इनको क्या करनी पड़ती है, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। जो चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एंड वेरियस मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स हैं वे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं टू द प्रॉब्लम्स। जैसे डिफरेंट कुछ एमएलए क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कुछ एमएलए क्या बता रहे हैं, आंसर्स बता रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि व्हाई दे हैव टेकन दिस डिसीजन, वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है, ठीक है, क्लियर। दे एक्सप्लेन, और वो क्या करते हैं, आंसर भी करते हैं व्हाटएवर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड टू देम। इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में सारी डिस्कशंस भी होती हैं, इसी में चीफ मिनिस्टर एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। कई बार चीफ मिनिस्टर जो मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला लेते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने अपनी चीज और क्लियर करनी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के भी वो अपनी बात करते हैं, या फिर डिफरेंट लीडर्स, ओपोजिशन लीडर्स, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं अपनी बात, ताकि मीडिया में आए, सब लोगों को पता चले, ठीक है। सो ये दिस वर्क इज बीइंग डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और जैसे हमने कहा कि ये डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, तो दीज डिफरेंट मिनिस्टर, ये तो सीएम हो गया, ठीक है, सीएम एंड मिनिस्टर्स, दे आर द इंचार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जो ये मिनिस्टर्स हैं ये क्या होते हैं, इंचार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, जैसे कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, देन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, डिफरेंट, जैसे पब्लिक वेल्थ, पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डेवलपमेंट, ये डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो अलग सोन। तो ये इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके कि ये मिनिस्टर्स क्या बना दिए जाते हैं, इंचार्ज बना दिए जाते हैं, ठीक है। ऑल द लॉज, जितने लॉज हो रहे हैं वो कहाँ पे, डिस्कशन भी यहाँ पे हो रही है, जो लॉ मेकिंग है वो भी कहाँ हो रही है, यहीं पे हो रही है। लॉज भी यही बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लॉज यहीं पे बनाए गए, डिसीजन भी यहीं पे लिए गए, और ये जो डिफरेंट इंचार्ज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं लॉज को जो वहां लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए गए थे उन्हीं को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट द लॉज, उन लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वट एवर हैज बीन मेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वहां पे लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। और जो भी ये काम करते हैं वो उनको अप्रूव करवाना पड़ता है चीफ मिनिस्टर से, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से जो भी ये काम करेंगे ये उनको अप्रूव करवाना पड़ेगा। दे गेट देयर वर्क अप्रूव्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से जो भी काम करते हैं वो अप्रूव करवाते हैं। जो लॉज लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है ये वेरियस डिपार्टमेंट्स उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वेरियस जो मिनिस्टर्स हैं वो इनके इंचार्ज हैं, डिफरेंट मिनिस्टर्स, ठीक है। अब डिपार्टमेंट, जैसे कि पूरे हम जलंधर की बात करें तो जलंधर में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो हेल्थ मिनिस्टर लेगा। एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना तो वो कौन लेगा, एजुकेशन मिनिस्टर लेगा, ठीक है। अगर किसानों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो कौन लेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेगा। तो दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट, और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग लीडर हो गया, क्लियर। अब ये हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम, और लेजिस्लेटिव असेंबली का काम क्या है, द लॉज आर बीइंग मेड हियर, discussions on various matters they are also being done here. The chief ministers they are also responsible to all the members of legislative assembly. They give their explanation, give their answers to the members of legislative assembly. So clear all these points? Yes, all these points are clear. And who is taking decisions for the state? Chief minister and ministers. And in legislative assembly they are also getting passed, laws are being passed in legislative assembly, laws यहीं पे पास होते हैं, ठीक है।
लेकिन जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर है वो वेरियस डिपार्टमेंट्स के थ्रू उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसीजन यहीं पे लिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, और यहाँ पे क्या किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो डिसीजन वहां पे लिया गया है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मिनिस्टर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। Clear? So this is all about your chapter, how state government works. Clear? So if there is any doubt, so please let me know. I hope ki all points are clear to you and you have noted down the points also. Yes, which is so moving to the questions. So now raise your hand for question answers. Yes, bache. So question answers, they are also from the points all we have discussed. That what is constituency and how the MLAs are elected. Yes, raise your hand, beta. First question, what is constituency and how MLA is elected? So there is also meaning of the term constituency and represent. Then who is MLA and how is MLA elected? Yes. Yes, Kanva beta. Yes, Vichi. Yes, ma'am. Ma'am, MLA is the member of the Legislative Assembly who represent people and also form the government. Each state has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the Legislative Assembly or MLA. MLA is elected by the people who contest in election by voting. Yes, very good. So you have to tell the meaning of constituency and represent. Okay, what is constituency? Excuse me, ma'am. What is constituency? An area from where one MLA is elected. Okay, first you tell this meaning and represent. So these MLAs, they are representing all the people, है ना? तो उन्होंने कहा ना कि इन दोनों वर्ड्स को यूज करो और फिर MLA बताओ कौन है. So MLA is a person who represent one constituency, ठीक है, और who is representative of one constituency. Okay, good beta. So now the next, how did some MLA become ministers? How did some MLAs, यहाँ तो सारे MLAs बने, how did some MLA become minister? कुछ MLAs minister कैसे बन जाते हैं? सारे MLAs minister क्यों नहीं बनते? Yes. हाँ जी नव्या बेटा. Yes, ma'am. After the elections, a political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state become the ruling party. The MLAs belonging to the ruling party will elect their leader, who will become the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. The governors of the state then appoints the chief minister and other ministers. Yes, chief minister and other ministers ये सिलेक्ट करती है रूलिंग पार्टी के मेंबर्स. उनको अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नर. ठीक है, स्टेट गवर्नर भी होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट में. ठीक है, वो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर, वो गवर्नर क्या करता है? इनको ओथ दिलवाता है, शपथ दिलवाता है. ठीक है, सो वो अपॉइंट करता है. सिलेक्ट कौन करते हैं? सिलेक्ट वो रूलिंग पार्टी खुद ही करते हैं. ठीक है, सो द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी दे सिलेक्ट वन मेंबर एज चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स एज their ministers. Okay, so now the next question, why should decision taken by chief minister and other ministers can be debated in legislative assembly? जो decision लिए गए हैं by chief minister and minister, why discussion is being done or what is the reason, what is the importance? Yes, Navya.
Yes. In a democratic government, participant is important from each and every section. Thus, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. These members then ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent, etc. After that, they have the main authority to finalize the decisions. Yes. So different MLAs, they discuss all the matters of important issues in Legislative Assembly, and after a discussion, the law is being made that should be in favor of all the people of a state. ठीक है? It should not be discriminative decision, ताकि कोई discriminative decision ना हो, सबके फेवर में जो भी decision लिया जाए सबके फेवर में लिया जाए. तो इसीलिए जो हमने क्या था डिबेट, अलग अलग मिनिस्टर्स डिबेट कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स भी बता रहे थे गवर्नमेंट को कि दिस इज प्रॉब्लम इन आवर एरिया, प्रॉब्लम भी पता चल जाती है और सभी जो डिसीजन है वो करेक्ट लिया जाता है. इस तरह जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं वो आंसरेबल भी हैं. ये नहीं कि वो कोई भी काम करते जाए, कोई भी डिसीजन लेते जाए, दे हैव टू आंसर टू ऑल द मेंबर्स कि व्हाई दे हैव टेकन सच डिसीजन. उनको आंसर देना पड़ेगा कि वो डिसीजन उन्होंने क्यों लिया. ठीक है, सो दैट्स व्हाई डिस्कशन दे आर इम्पोर्टेंट. Okay, so what was the problem in पाटलिपुरम and what action was taken by? तो यहाँ पे the last ये है कि पाटलिपुरम में क्या प्रॉब्लम थी. एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है कि पाटलिपुरम में भी सप्लाई, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम थी. ठीक है, लोग क्या है, प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ठीक है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, फिर बाद में जो एमएलए है वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और उनको प्रॉमिस करता है कि आई विल टेक डिसीजन. ठीक है, सो देन देयर इज कि what is the difference between work that MLA is doing and the work that government departments are doing. ठीक है, तो MLA का वर्क क्या है और डिपार्टमेंट का वर्क क्या है. यस, MLAs असेंबली में क्या वर्क कर रहे हैं और डिपार्टमेंट का काम, ये भी हमने डिस्कस किया है कि व्हाट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज डूइंग. यस कन. Yes, ma'am. Ma'am, the main problems in Patlapuram was lack of proper sanitization and hygiene. Second point, scarcity of clean drinking water. There was not proper medical facilities. There was a spread of diarrhea. Discussion or action that were taken by the following. Public meeting. There was a demand for the improvement of the healthcare and sanitization facilities from the officials. Legislative Assembly, they intend to supply drinking water to every village through tanker, trucks, and also explained the steps that the government had taken. Chief Minister, they visited Patlapuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. They promised for funds for the works and they also planned to start a campaign to inform people. ये सो डिफरेंट, जैसे कि फर्स्ट देयर इज प्रॉब्लम इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, पाटलिपुरम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम है. ठीक है, वहां लोगों ने पहले पब्लिक मीटिंग की, प्रोटेस्ट किया, देन वो मैटर पे लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कशन की गई. लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, वहां पे भी मैटर को सब लोगों को बताया और चीफ मिनिस्टर ने डिसीजन भी लिया उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल गिवन इन योर बुक. सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ द एमएलए वर्क, they work in assembly and how the government departments they work. Yes, Bhavya. The main difference between the work that MLA do in the assembly and work done by the government department is, MLAs in the assembly make the laws and these laws are implemented by the government departments and they also get approved by the CM and the chief ministers. So different MLAs, they also take part in discussions in legislative assembly, they take part in making laws, they ask their questions to chief minister,
ठीक है, they, and if they are ruling party, they also give explanation and answers to the opposition members. And the government departments, they are implementing the laws, whatever laws are being made by legislative assembly, and they have to get approved all the decision, all the actions that should be taken by them. Clear? So it is all about this chapter and question answers. So if there is any doubt, yes beta, okay then, so complete these question answers and go through the chapter. ठीक है?